रेवरेंड आइजक क्राइस्ट चैपल का वरिष्ठ प्रचारक है। वो एक उत्तेजित प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। अब आप उनका संदेश सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है बाइबल से 7 मूल सिद्धांत आपके जीवन के सपने पूरा करने के लिए। Now this morning I'd like to talk to you on 7 biblical keys to having fulfilled dreams in our life. बाइबल से 7 मूल सिद्धांत हमारे जीवन के सपने पूरा करने के लिए, इस विषय पर मैं आपसे आज सुबह बातें करना चाहता हूँ। I encourage you to write down these keys. Some of them seem so simple, but every one of them are the keys that will unlock the future in your life. मैं चाहूँगा कि आप इन मूल सिद्धांतों को लिखें। इनमें से कुछ बहुत सामान्य दिखते हैं, पर यह सारे सिद्धांत आपके भविष्य को खोलेगा। Now as you enter a brand new year, there's always this question in our hearts, how will the year be? अब जैसे हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे हृदय में यह सवाल होता है कि नव वर्ष कैसा होगा। Now the word of the Lord to us yesterday was this: the year will be as you want it to be, as you desire it to be. The question is, what do you desire it to be? अब हमारे लिए परमेश्वर का वचन यह है कि नव वर्ष हम जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं। If I desire this year to be a year of blessing, will it be a year of blessing? Yes, it will be a year of blessing. But you create the climate and the circumstance for that blessing to happen, and you start now. अगर आप चाहते हैं कि यह साल आशीर्वाद का होगा, तो क्या वैसा ही होगा? हाँ, यह आशीर्वाद का साल होगा, पर आपको उसके लिए सही माहौल और हालात उत्पन्न करना होगा उस आशीर्वाद पाने के लिए, और आप अभी शुरू करेंगे। Please listen. If you wait for the 9th month or the 11th month for the grand breakthrough to happen, you will waste your time. Your breakthrough happens now as you start off on the journey of faith in the year 2006. सुनिए, अगर आप उस शानदार सफलता पाने के लिए 9वां या 11वां महीने तक इंतज़ार करेंगे, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपका सफलता अब होता है जब आप विश्वास की यात्रा शुरू करेंगे इस नए साल में। But if you prepare, if you seek God's face, if you decide and desire, this is how this year is going to be, and I'll work towards it. Well, God gives you His word. It will be everything that you want it to be. Whatever you desire, He says you will get it. पर अगर आप तैयारी करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, निश्चय और इच्छा करेंगे कि नव वर्ष ऐसा ही होने वाला है और उसकी ओर काम करेंगे, तो परमेश्वर से आपके लिए वचन यह है कि आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। परमेश्वर कहते हैं कि आप जो चाहेंगे वही पाएंगे। Whether it be blessing or curse, whether it be life or death, whether it be prosperity or something else which is negative, what you choose this year to be, it will be to you. चाहे वह आशीर्वाद हो या शाप, चाहे वह जीवन हो या मौत, चाहे वह उन्नति हो या कुछ अभावात्मक चीज़ हो, आप जो चाहते हैं यह साल ऐसा ही होगा आपके लिए। And that's the reason why I want to talk to you about the biblical keys to fulfill dreams. इसी कारण मैं आपसे इन मूल सिद्धांतों जो सपना पूरा करते हैं इसके बारे में बातें कर रहा हूँ। Dreams just don't just happen. Dreams happen when you work towards the dream becoming a reality. सपने ऐसे ही होते नहीं हैं, वे तब होते हैं जब आप उसको वास्तव बनाने के लिए उसकी ओर काम करते हैं। Please listen. Whatever you desire and whatever you work towards having fulfilled in the year 2006, even though initially it may look like a blur, please listen carefully. You will see your dreams fulfilled in this year. ध्यान से सुनिए, आप जो चाहते हैं
और जिसको इस साल में पूरा करने के लिए काम करेंगे, चाहे वह पहले अस्पष्ट दिखे, आप अपने सपना को इस साल में पूरा होते हुए देखेंगे। If you dream of an overflowing blessing, you will have an overflowing blessing. If you think 2006 will be just like 2005, it will be just like 2005. अगर आप बहते हुए आशीर्वाद का सपना देखेंगे तो आपको वही मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि नव वर्ष पिछले साल की तरह ही होगा तो वैसा ही होगा। If you think maybe this year will be a bad year for me, because sometimes people speak it out. They look at some circumstance which is happening on the outside. When you decide that's how it's going to be, and when you desire it to be that, please listen, you will not see your expectation cut off. That's how it's going to be. और अगर आप सोचेंगे कि यह साल मेरे लिए बुरा होगा, क्योंकि कुछ समय में लोग ऐसे ही बोलते हैं बाहर हो रही कुछ परिस्थिति को देखकर, जब आप निश्चय करेंगे और इच्छा करेंगे कि ऐसा ही होगा, ध्यान से सुनिए, आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा, आपके आशा न टूटेगी। Pastor, it's frightening. Well, that's the idea. That's the idea. Because remember, you can't be any less mature this new year than you were 2 years ago when you first started off on your walk of faith. पास्टर, यह डरावना है, यही बात है, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि इस नव वर्ष में आप पिछले 2 साल से कम परिपक्व हो नहीं सकते जब आपने विश्वास के साथ चलना प्रारंभ किया। You got to grow. You got to move forward. You got to believe that it's not every day God just doing some miracle. There will be days that there will be challenges. आपको बढ़ना होगा, आगे चलना होगा, आपको समझना होगा कि परमेश्वर हर दिन कुछ आश्चर्य कर्म करेंगे नहीं। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिसमें चुनौती भी होगी। There will be days where you will have to, walk by faith, not by sight, seeing things that may look a lot different from what you believe that God's going to do. कुछ दिन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको विश्वास के साथ चलना होगा। आप जो देखते हैं उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर ने जो कहा कि वे करेंगे उससे बहुत अलग चीज़ें को आप देखेंगे। But believe me, if you have the character of Christ on the inside of you and the maturity of Christ on the inside of you, you will see yourself overcome. And when the brand new year 2007 opens up, you will say, 2006 was everything that I wanted it to be. Hallelujah! पर मुझे विश्वास कीजिए, अगर मसीहा और उनके परिपक्व आपके अंदर हैं तो आप देखेंगे कि आप विजेता होंगे और आने वाले नव वर्ष में कहेंगे कि यह साल वैसा ही था जैसे मैंने चाहा। हालेलुया। Hebrews chapter 11 please and verse 10. इब्रानियों 11वां अध्याय वचन 10। For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। God inspires us to believe that he is a builder of lives, builder of homes, builder of houses, builder of cities, builder of nations, not a destroyer. परमेश्वर हमें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वे जिंदगी बनाते हैं, घर बनाने वाले हैं, मकान बनाने वाले हैं, नगर बनाने वाले हैं, देश बनाने वाले हैं, नष्ट करने वाले नहीं। This is the word to us as believers. And the Bible says Abraham believed it. He believed God is a builder of visions and dreams. विश्वासी के नाते हमारे लिए यही वचन है और बाइबल कहता है कि अब्राहम ने इसे विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर दर्शन और सपने बनाने वाले हैं। He believed that there would be not only a city, but it would have foundations, and the foundations would be laid by God himself. अब्राहम ने विश्वास किया कि एक नगर होगा, उसका नींव होगा और उस नींव को परमेश्वर बनाएंगे। What did Abraham believe? He believed that there would be foundations.
and foundations laid by God Himself. अब्राहम ने क्या विश्वास किया? उसने विश्वास किया कि नींव होगा और उस नींव को परमेश्वर लगाएंगे। Please listen, those foundations will never shake. I said those foundations will never shake. ध्यान से सुनिए, यह नींव हिलेगा नहीं। मैंने कहा वह नींव हिलेगा नहीं। And that's the reason why we're going to be looking at how your dream starts off initially and why these 7 biblical keys are important in the fulfillment of your dreams. इसी कारण हम देखने जा रहे हैं कि आपका सपना कैसे शुरू होता है और बाइबल से यह 7 मूल सिद्धांत आपके सपना को पूरा करने के लिए बहुमुख्य क्यों हैं। Now, your heart is like a canvas on which a picture is painted. आपका हृदय एक कैनवस है जिस पर एक चित्र बनाया गया है। Your heart is the canvas on which God, by the person of the Holy Ghost, paints on the inside a picture. ध्यान से सुनिए, आपका हृदय एक कैनवस है जिस पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर एक चित्र बनाते हैं। The paint required to paint this picture comes from God's Word. And as you fellowship with God, God begins to show you not what you are, but what you can be. How your life can change. How the year can bring forth something else that you have never seen in the past. Goodness. और इस चित्र पर लगाने के लिए रंग परमेश्वर के वचन से आता है और जैसे आप परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे, परमेश्वर आपको दिखाते हैं कि आप क्या बन सकते हैं, यह नहीं कि आप क्या है, आपका जीवन कैसे बदल सकता है और यह साल कैसे फल लाएगा। आपने पिछले सालों में जिसे देखा नहीं, भलाई। He begins to speak to you about it. And as He speaks, it's up to you to let Him to draw. It's up to you to let Him bring out the best picture that He is able to draw from God's Word. परमेश्वर आपके साथ उसके बारे में बातें करते हैं और यह आपके हाथ में है कि आप उन्हें चित्र बनाना छोड़ेंगे कि नहीं। परमेश्वर के वचन से सबसे उत्तम चित्र आपके अंदर बनाने के लिए आप छोड़ेंगे या नहीं। Don't stop Him when He is painting. That's the worst thing you can do. जब वे चित्र बना रहे हैं तो उन्हें रोकिए नहीं, यही सबसे बुरा बात होगा। Don't stop Him. But the problem is people do stop Him. And how is the question? When they don't cooperate with what He's asked us to do. उन्हें रोकिए नहीं, पर समस्या यह है कि अधिक लोग परमेश्वर को रोकते हैं। और कैसे? यही प्रश्न है। जब हम उनके साथ सहयोग करते नहीं और वे जो हमसे कहते हैं उसे करते नहीं। You place a hindrance to God the Holy Spirit working in your life when you don't fellowship with Him. That's why the Bible says, and let the fellowship of the Holy Ghost be with you. Be your portion. जब आप पवित्र आत्मा से संगति नहीं रखते, तब आप एक बाधा डालते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आपके जीवन में काम करने से। बाइबल कहता है, आपके साथ पवित्र आत्मा का संगति रहे, वह आपका हिस्सा होगा। What is the walk of faith? It's fellowshipping with God the Holy Spirit every day. विश्वास के साथ चलना क्या होता है? वह हर दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहना, यही विश्वास के साथ चलना है। He leads you. He leads you not into the path of destruction. He leads you in the ways of righteousness and life. पवित्र आत्मा आपको ले चलते हैं नाश के मार्ग में नहीं, धार्मिकता के मार्ग में और जीवन के मार्ग में। He shares with us about God's season. What we read in Galatians chapter 6 verse 9 as due season. वे हमसे परमेश्वर के समय के बारे में बताते हैं। हम जो पढ़ते हैं गलातियों 6 अध्याय वचन 9 में, ठीक समय। You may not know about 2006, but He knows. He knows. He is omniscience personified. आप नव वर्ष के बारे में जानते नहीं,
पर परमेश्वर जानते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञाता है। Can you just think about this? The world has projections for this year, but church folk don't know what 2006 is going to be like. क्या आपने इसके बारे में सोचा? दुनिया के लोग इस साल के बारे में जानते हैं, पर चर्च में जो लोग होते हैं वे जानते नहीं कि यह साल 2006 कैसा होगा। And the best part is, we have the one who's omniscience personified, while they don't have a spirit on the inside of them that is omniscience personified. And yet they have a projection for 2006. और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास सर्वज्ञाता परमेश्वर है, पर दुनिया के लोग के अंदर वह आत्मा नहीं है जो सर्वज्ञाता होता है, पर फिर भी उनके पास इस नव वर्ष के बारे में ज्ञान है। While the church sits around twiddling their fingers saying we don't know what this year is going to be like. No, we know what it's going to be like. It's going to be everything that we want it to be. उन्हें ज्ञान होता है कि नव वर्ष कैसा होगा, जबकि चर्च के लोग बैठकर उंगली दबाकर कह रहे हैं हम जानते नहीं कि यह साल कैसा होगा। नहीं, हम जानते हैं कि यह साल कैसा होगा, हम जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। It's going to be everything that we want it to be. If we want souls, we will have souls. We want growth, we will have growth. If you are going to believe, to break out on the left and on the right and to grow and to increase, we will see it in the year 2006. हम जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग परमेश्वर के बारे में जानकर उनके पास आए तो ऐसा ही होगा। हम बढ़ना चाहते हैं तो हम बढ़ेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो हम बाएं और दाहिना की ओर बढ़ेंगे और संख्या में भी अधिक होंगे, तो आप उसे इस साल में होते हुए देखेंगे। We will. I believe it with all of my heart. ऐसा ही होगा, मैं उसे अपने हृदय में विश्वास करता हूँ। We got to decide, I will not put a hindrance. When God the Holy Spirit is drawing on the inside of me a picture of what this year is going to be like, of how I will be this year in God's kingdom. आपको निश्चय करना होगा कि जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके अंदर चित्र बना रहे हैं कि यह नव वर्ष कैसा होगा, तो आप उसमें बाधा नहीं डालेंगे और मैं इस साल परमेश्वर के राज्य में कैसा रहूंगा। Now the first key is know where you're going. पहला मूल सिद्धांत, आपको जानना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। Know where you're going. Many don't know where they're going. They wait for circumstance to tell them what to do. That's the worst thing you can do. आपको जानना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बहुत लोग जानते नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे इंतज़ार करते हैं कि परिस्थिति उनको बताए कि उन्हें क्या करना होगा। यही सबसे बुरी बात है। Because the Bible tells us in Romans chapter 8 verse 14, to as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. क्योंकि बाइबल हमें बताता है रोमियो 8वां अध्याय 14 वचन में, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। We got to know where we are going. हमें यह जानना होगा कि हमें कहाँ जाना है। Because dreams will never become a reality when you're confused about what you want and where you're going. क्योंकि सपना वास्तव नहीं बनता जब हम उलझ जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हमें कहाँ जाना है। Don't be influenced about what people keep saying all the time. If God has said something about your life, just go for it. Work towards it. Know where you're going. लोग हमेशा क्या बोलते रहते हैं, उन बातों का आप पर असर पड़ना नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपके बारे में कुछ कहा है तो उसके साथ जाइए और उसकी ओर काम कीजिए। You've got to know where you're going because you will never change your present location until you're sure of your destination. आपको यह जानना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी जहाँ हैं वहाँ से जाएंगे नहीं जब तक आप अपने लक्ष्य के बारे में निश्चय नहीं करते। That's why I told you, it sounds simple. But most of Jesus' instructions are very simple. Know where you're going. Know your destination.
know what you want to do in life. इसीलिए मैंने आपसे कहा, सुनने के लिए यह सामान्य होता है। यीशु ने जो आदेश दिया वह सामान्य था। आपको यह जानना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपके लक्ष्य के बारे में भी जानिए। यह जानिए कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। You must have your dream on the inside of you clear about where you want to be. If you want to be a musician, well, you got to work towards it. आप जहाँ होना चाहते हैं उसके बारे में आपके अंदर एक स्पष्ट सपना होना चाहिए। अगर आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। You can't just sit someday on a keyboard and just start playing. You can't. The notes won't flow. Sure, you'll make a lot of noise. आप अचानक किसी दिन पियानो पर बैठकर बजा नहीं सकते, कोई स्वर निकलेगा नहीं। यह जरूर है कि आप बहुत शोर मचाएंगे, But you will never become what you wanted to become because you didn't work towards it. पर आप जो बनना चाहते हैं वह बनेंगे नहीं, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ तैयारी किया नहीं। You must know where you're heading and you must know what to do as you head towards your dream. आपको यह जानना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, जैसे आप अपने सपने की ओर जाएंगे। You'll start moving towards that goal. You want to become a musician? Well, find out who teaches music. There are many musicians, but few teachers. Find out the right person. That's the first step. Then get enrolled. आप उस लक्ष्य की ओर जाना प्रारंभ करेंगे। अगर आप संगीतकार बनना चाहते हैं, आपको यह पता लगाना होगा कि कौन संगीत सिखाता है। बहुत संगीतकार होते हैं, पर उनमें से कुछ लोग ही सिखाते हैं। ठीक आदमी को ढूंढकर निकालिए, यही पहला कदम है, और फिर भर्ती हो जाइए। If you have to buy an instrument, buy an instrument. It's amazing when I see people. They say, I'm going to get a car. I ask them, do you have your license? They think I'm talking strange stuff. अगर आपको वाद्य खरीदना है तो उसे खरीदिए। यह आश्चर्यजनक है जब लोग मुझे बताते हैं कि मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, आपके पास लाइसेंस है? वे सोचते हैं कि मैं अजीब बातें कर रहा हूँ। What, pastor? They didn't hear. Pardon me? Do you have your license? No, I'll get it after I get the car. क्या पास्टर? उन्होंने मुझे सुना नहीं। माफ कीजिए, क्या आपके पास लाइसेंस है? वे बताते हैं, नहीं, कार खरीदने के बाद उसे लूंगा। You'll get it after you land yourself in a lot of trouble. That's what you'll do. अपने आप को मुसीबत में डालने के बाद ही आप उसे लेंगे, यही करेंगे। They don't move towards what they want. They're confused about their dream. They don't know the way to go to their dreams. They don't know how dreams are made. वे जो चाहते हैं उसकी ओर जाते नहीं, अपने सपना में उलझ जाते हैं। वे जानते नहीं कि उन्हें कैसे अपने सपने की ओर जाना है। वे जानते नहीं कि सपना कैसे बनते हैं। So the first step is know where you're going. तो पहला कदम आपको जानना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। The second key, दूसरा मूल सिद्धांत, write your dream down. Some don't even write in church. Forget about the dream. They'll never see their dreams happen. Every day it's a new dream. Every day it's a new thing. They understand God's plan by circumstances. Too bad. Write your dream down. अपने सपने को लिखिए। कुछ लोग चर्च में लिखते नहीं, वे क्या उनके सपना को लिखेंगे? वे कभी अपने सपना को पूरा होते हुए देखेंगे नहीं। हर दिन एक नया सपना, कुछ नई बात। वे परमेश्वर की योजना को परिस्थितियों के द्वारा समझते हैं। यह बुरा होता है। अपने सपना को लिखिए। I'm going to show you scripture for that. इसे आपको वचन से दिखाऊंगा। Please understand, God is a God of order. He never behaves in a disorderly way. Come with me to the book of Habakkuk, chapter 2, please. इसे समझिए, परमेश्वर व्यवस्था के परमेश्वर हैं। वह अव्यवस्थित रूप में व्यवहार नहीं करते। मेरे साथ हबक्कुक दूसरे अध्याय आइए। Habakkuk chapter 2 and look at verse 2 and 3. हबक्कुक दूसरा अध्याय वचन 2 और 3। Write the vision down that he may run that readeth it. You don't read it, you're not going to run. दर्शन की बातें लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप दौड़ेंगे नहीं। It's not plain,
It's hard to understand. यह साफ साफ नहीं है, समझना कठिन है। Unless I write my dream down, it becomes hard for me to run. जब तक मैं अपने सपने को लिखूंगा नहीं, मेरा दौड़ना कठिन बन जाएगा। I will not run. I'll be stumbling around, stubbing my toe as I go. Too bad. मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं चलते चलते अपने पैर को टकरा के फिरूंगा। बहुत बुरा है। We'll read verse 2 again, please. Verse 2 again. That he may run who readeth it. हम फिर से वचन 2 पढ़ेंगे। वचन 2, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए। Someone is going to join you. What is your dream? What is your vision? Do you have a dream that you can put down on paper? Or do you just say, well, we'll just go along and we'll see as it goes, we will, develop on our dream. आपके साथ कोई मिल जाए, आपका सपना क्या है? आपका क्या दर्शन है? क्या आपके पास ऐसा सपना है जिसे आप लिख सकते हैं, या ऐसे कहते हैं कि चलते रहेंगे और चलते चलते उस सपने पर विकास करेंगे? Just think about an architect you employ. You go to him and you say, this is the way we need to have it. As you keep speaking, he keeps just, putting down what you're saying, a rough sketch of it. इसके बारे में सोचिए कि अगर आप एक आर्किटेक्ट के पास जाकर उससे कहेंगे, हम ऐसे ही कुछ चाहते हैं, आप जैसे उसे बातें करेंगे वह एक नक्शा बनाता जाता है। He doesn't say, I'll keep building as we go. We'll just add few, rooms as we go. Now, if you do that, please listen, you'll have your guests entering into your bathroom first. वह बताता नहीं कि हम बनाते जाएंगे और ऐसे ही कुछ कमरे बनाएंगे। अब सुनिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो जब आपके घर कुछ मेहमान आएंगे तो वे पहले आपके बाथरूम में प्रवेश करेंगे। I've seen homes like that. Then they'll jump into the bedroom and finally they'll come into the sitting room. You never planned. मैंने ऐसे घरों को देखा है, और फिर वे बेडरूम में घुसेंगे और फिर अंत में बैठक में आ पहुंचेंगे। उन्होंने नक्शा बनाया नहीं। They never planned. Then we go into the place and say, no, we can't have the, bathroom in the front. Please, seal this place. Put another room the other side. Why? Because they build as they go. वे नक्शा बनाते नहीं और फिर ऐसे जगह में घुसकर कहेंगे कि हम बाथरूम को यहाँ सामने नहीं रख सकते, इस रास्ते को बंद करके दूसरी तरफ एक कमरा बना दीजिए। ये क्यों होता है? क्योंकि वे चलते चलते बनाते हैं। And I'm talking of a place that I went and saw, and this is what I had to tell. मैंने एक ऐसे जगह देखा और मुझे उन लोगों से ऐसा ही कहना पड़ा। Sure, they'll build. Only it won't be very pleasant building. Follow. They're building on a disorderly plan. God doesn't want disorderliness. He says build on a vision that you have written down. यह जरूर है कि उन्होंने कुछ बनाया, पर वह सुहावना नहीं होता। सुनिए, वे एक अव्यवस्थित रूप से बना रहे हैं और परमेश्वर इसे चाहते नहीं। वे बता रहे हैं अपने दर्शन को लिख के रखो और उस पर बनाओ। Write your dream. Even if the devil comes and stands before you and says it will never happen, don't listen to him. You just write down the dream. अपने सपना को लिखिए, इसका परवाह मत कीजिए कि अगर शैतान आपके सामने खड़े होकर कहेगा ऐसा होगा नहीं, उसके बातों को सुनिए मत। अपने सपने को लिख कर रखिए। Just write it down. Say, this is what I will see happen in my life. बस उसे लिखिए, कहिए कि यही मेरे जीवन में होते हुए मैं देखूंगा। Deuteronomy chapter 6 and verse 6. व्यवस्था विवरण 6 अध्याय वचन 6, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। Let the word be inside you. वचन आपके अंदर रहे। Let the word be inside you. That's the paint. वचन आपके अंदर रहे, यही रंग होता है। Let it be there. I have given it to you. I have spoken the word to you. But do something about it. वचन वहीं पे रहे, क्योंकि मैंने उसे आपके लिए दिया है। मैंने तुझसे वचन बोला है, अब तुम्हें उसके बारे में कुछ करना होगा। You got to cooperate with God. You got to fellowship with God. You got to do what He's asking you to do. You got to write it down, because that's exactly how it's going to be. आपको परमेश्वर के साथ सहयोग रखना होगा,
उनके साथ संगति में रहना होगा। आपको वे जो कह रहे हैं उसे करना होगा। आपको उसे लिखना होगा, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। The word is what I will see happen in my life, not anything else. In my house, you've got to decide that the word will sanctify and set apart your houses and your homes. ऐसा ही होने वाला है मेरे घर में, मेरे जीवन में। मैं वचन को काम करते हुए देखूंगा। आपको यह निश्चय करना होगा कि वचन आपके घर को पवित्र और अलग रखेगा। How does he say it? Look at verse 8 and 9. वह क्या बता रहे हैं? देखिए वचन 8 और 9। He is commanding it so. Let the word remind you. Let it be as frontlets for your eyes. और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं कि वचन आपको याद दिलाए और यह आपके आंखों के बीच टीके का काम करेगा। Write the vision. फिर दर्शन को लिखो। Write what I'm talking to you about. What are the things he says? They have not yet gone into that place. They're still in the wilderness. But he talks of houses filled with good things in verse 10, 11, 12. और मैं जो तुमसे बता रहा हूँ उसे लिखो। वे लोग अभी जंगल में थे, प्रतिज्ञा के देश में गए नहीं, और फिर भी परमेश्वर अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घरों के बारे में बातें कर रहे थे। वचन 10, 11 और 12 में। If you want all these things to happen, you got to go and see that your houses are sanctified by the written word of God, the written down vision of God, the written down plan of God. अगर यह सब आपके लिए होना है तो आपको यह देखना है कि आपके घरों को परमेश्वर के लिखे हुए वचन के साथ, परमेश्वर के लिखे हुए दर्शन के साथ, परमेश्वर के द्वारा लिखे गए योजना के साथ पवित्र रखे। Learn to write down the plan of God. Learn to write down the vision or the dream that you have on the inside of you. Number 3, associate with the right people. परमेश्वर के योजना को लिखना सीखिए। आपके अंदर जो सपना और दर्शन है उसे लिखना सीखिए। तीसरा, ठीक लोगों के साथ संबंध रखिए। If you associate with the wrong man, please listen very carefully. And this is the problem with most people. They think it doesn't happen. No, it happens. It happens. What do you mean, Pastor? Do you mean to say I should not have a friend? No, you have a friend. But find out whether he is a man of vision himself. अगर आप गलत लोगों के साथ संबंध रखेंगे तो ध्यान से सुनिए। अनेक लोगों के साथ यही समस्या होती है। वे सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता, पर ऐसा ही होता है। आप क्या बोल रहे हैं पास्टर? आपका यह मतलब है कि मेरे कोई दोस्त होना नहीं चाहिए? नहीं, आपके दोस्त हो सकते हैं, पर इसे पता कीजिए कि उस आदमी का कुछ दर्शन है कि नहीं। Remember, friends are God-given gifts. So you better get the best gift. याद रखिए, दोस्त परमेश्वर के देन होते हैं, तो आपको सबसे अच्छे देन को चुनना चाहिए। Never associate with a man, please listen, who permits uncleanness to enter into your life and to affect you. That's the third key. Because you have a dream. A non-dreamer will mock you, will laugh at you, will say, how is it possible? Can't you see what's happening in the natural? एक ऐसे आदमी के साथ संबंध रखिए मत जो आपके जीवन में अशुद्धता को लाता है और जिससे आप पर असर पड़ता है। यही तीसरा मूल सिद्धांत है, क्योंकि आपका एक सपना होता है और ऐसा आदमी जिसका कोई सपना ना हो वो आपका मजाक उड़ाएगा, आप पर हंसेगा और पूछेगा, क्या यह हो सकता है? क्या तुम देख नहीं सकते कि प्राकृतिक में क्या हो रहा है? Impossible. It cannot happen. Will be the mindset of a non-dreamer. Because he has no dream. And that will affect you. ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही विचारधारा होता है उस आदमी का जिसका कोई सपना नहीं हो, क्योंकि उसका कोई सपना नहीं है और इसका असर आप पर पड़ेगा। Many are offended when I talk about this. But this is the basic place where most people have a problem. They don't have the guts to leave the ruts in this area. बहुत लोगों को बुरा लगता है जब मैं इसके बारे में बातें करता हूँ, पर इसी बात पर बहुत लोग मुसीबतों का सामना करते हैं। उस गंदगी को छोड़कर बाहर आने की उनमें हिम्मत नहीं होती।
Look at Proverbs chapter 13 and verse 20. The Bible says, "He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be what? Destroyed." The word destroyed means broken. देखिए नीति वचन 13 अध्याय वचन 20 में बाइबल कहता है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। वह शब्द नष्ट का मतलब है टूटना। That means destruction doesn't come simply. Broken dreams don't just simply happen. They happen because you are a companion of fool. इसका यह मतलब है कि बर्बादी साधारण रीति से आता नहीं। टूटे सपने भी ऐसे ही होते नहीं। वे तब होता है जब आप मूर्खों के साथी होते हैं। Some will say, but he's also a human being. Nobody said he's an animal. The Bible didn't call him an animal. The Bible calls him a fool. कुछ लोग बोलेंगे, पर वह भी मनुष्य है। किसी ने उसे जानवर नहीं कहा। बाइबल उसे जानवर बुलाता नहीं, बाइबल उसे मूर्ख बुलाता है। Why? Because he doesn't share the same belief that you share with the God you serve. A God who puts a holy dream on the inside of you. क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर का आप सेवा करते हैं, उन पर आपका विश्वास इस आदमी के विश्वास के साथ मिलता नहीं। वह परमेश्वर जो आपके अंदर एक पवित्र सपना रखते हैं। A man who walks or keeps company with wise men walks. Highlight that. वह आदमी जो बुद्धिमानों के साथ चलता है, यह संगति रखता है। इस शब्द पर रेखा खींच कर रखिए। Walking entails everyday effort. You go with a non-walker, you will overtake him in no time because he's never got used to the discipline of walking. चलना हर रोज का प्रयत्न होता है। अगर आप ऐसे आदमी के साथ जाएंगे जो चलता नहीं, तो बहुत आसानी से आप उसे आगे चल सकते हैं, क्योंकि वो चलने से आदी नहीं होता है। He has 2 feet. He's capable of walking. He even walks. Only his pace is different because he's never disciplined himself to be a proper walker. उसके 2 पैर होते हैं, वह चल भी सकता है और चलता भी है, पर उसका रफ्तार अलग होता है, क्योंकि उसने चलने का आदत बनाया नहीं। The difference between him and you is what? One difference. Same set of muscles. Only one is used, one is not used. आप में और उसमें यह एक ही अंतर होता है। एक ही तरह के मांसपेशी, एक ने उसका इस्तेमाल किया और दूसरे ने नहीं किया। God's not going to put new muscles into somebody else who has never walked. No, it's all there. परमेश्वर उस आदमी जो पहले कभी चला नहीं, उसके अंदर नए मांसपेशी डालने वाले नहीं हैं। वह पहले से ही वही पे था। So he that walketh with wise shall be wise. You cannot come to a place where God's anointing and the wisdom of God is present and go back a fool. But you will be a fool if you associate and be a companion of fools. Your company is fools. तो बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ऐसे स्थान में आए जहां परमेश्वर का अभिषेक हो, उनका बुद्धि भी उपस्थित हो और आप वापस मूर्ख ही जाए। पर आप मूर्ख रहेंगे जब आप मूर्खों के साथ होते हैं और उनके साथ संबंध रखते हैं। आपका संबंध मूर्खों से होता है। In which company do you belong? Somebody asks you. If you are with wise men, you can say the company of the wise. But if you are not with the company of the wise, you will have to say the company of fools. अगर आपसे कोई पूछे आप किन लोगों के साथ संबंध रखते हैं, अगर आप बुद्धिमानों के साथ होते तो कहेंगे बुद्धिमानों के साथ, पर अगर आप बुद्धिमानों के साथ नहीं रखते तो आपको कहना होगा मूर्खों के साथ। What is the end result? You are a fool. What will happen to fools? They will be destroyed. और उसका क्या परिणाम होता है? आप मूर्ख होते हैं और मूर्ख नष्ट हो जाएंगे। Number 4. Replay your previous victories. चौथा, अपने पिछले सफलता को पुनर्वादन कीजिए। Why? Because your life will always move towards your most dominant thought. This is a principle. क्यों? क्योंकि आपका जीवन हमेशा आपके प्रभावशाली सोच की ओर ही जाएगा। यही सिद्धांत है।
What is your dominant thought? All the time, what is dominating your thought? If it's pleasure at any cost, your life will go towards that. Only at one place, you will start paying a price. हमेशा आपका क्या प्रभावशाली सोच होता है, आपके सोच पर क्या प्रभाव कर रहा है। किसी भी कीमत पर मौज मस्ती यही हो तो आपका जीवन इसकी ओर ही जाएगा। पर यह ज़रूर है, आपको कभी इसके लिए कीमत चुकाना होगा। You will start living in abject poverty. To tell you the truth, you will be living completely a life of indebtedness. आप गरीबी में जीना प्रारंभ करेंगे। सच बोले तो आप पूरी तरह कर्जदारी की जिंदगी जिएंगे। I'm going to give you biblical examples for this. In Philippians chapter 3 verses 13 and 14, Paul says he forgets the things that were in the past, but he looks forward to something good. He looks forward to the blessing that comes from God. इसकी बाइबल से उदाहरण देने जा रहा हूँ। फिलिपियों 3 अध्याय वचन 13 और 14 में पौलुस कहते हैं कि जो बातें पहले हुई उन्हें भूल जाते और जो आगे आने वाले बात होती है उसकी ओर देखते हैं कि उसमें कुछ अच्छाई हो। वे उस आशीर्वाद के ओर देखते हैं जो परमेश्वर से आता है। Look at Philippians chapter 3 verses 13 and 14 please. देखिए फिलिपियों 3 अध्याय वचन 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशान की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीहा यीशु में ऊपर बुलाया है। He is keeping a good desire before him. The best thing is this, note it down. He wrote about. He had not yet got it, but he wrote his vision down. It was a written letter to the Philippian church. वे अपने सामने एक अच्छे इच्छा को रख रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसे लिखा था। यह सब तो उनको मिला न था, पर फिर भी उन्होंने अपने दर्शन को लिखा था। यह फिलिपी के कलीसिया के लिए लिखी गई पत्री थी। That's the good thing. He had his goal set out. He had his vision written down. He knew what he wanted. He didn't want his past dominating him. Because your memory keeps 2 files always. One is past failures and one is past successes. उसने अपने लक्ष्य को चुन कर रखा था, अपने दर्शन को लिख कर रखा था। वे जानते थे कि वे क्या चाहते थे और यह नहीं चाहते कि उनके पिछले जिंदगी उन पर प्रभुता जताए, क्योंकि हमारे याददाश्त 2 फाइल रखती है, एक पिछले असफलता की और दूसरी पिछले सफलता की। When you play past failures, you think God won't do it. You play past successes, you will say if he did it then he'll do it again. I have no reason to doubt him. जब आप पिछले असफलता को बार बार देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि परमेश्वर कुछ करेंगे नहीं, पर जब आप अपने पिछले सफलता को देखेंगे तो आप कहेंगे कि अगर परमेश्वर ने उसे तब किया तो अब भी उसे करेंगे। उन पर शक करने की कोई कारण नहीं। Please follow. What was predominantly on David's mind before he met Goliath? The dead lion and the dead bear. Therefore, this is the most important part. When Goliath came towards David, you see the Bible tells us David ran towards Goliath. यह देखिए कि दाऊद के मन में क्या प्रधान था। गोलियत से मिलने से पहले मरा हुआ सिंह और मरा हुआ बालू, यही सबसे मुख्य बात है। जब गोलियत दाऊद के पास आया, आप देखेंगे कि बाइबल कहता है कि दाऊद ने उसकी ओर फुर्ती से दौड़ा। His life was not a life that was reluctantly moving towards Goliath. Nobody had to push him from the back. The dominant thought in his mind was dead carcass, dead man. उसका जीवन ऐसा नहीं था कि वह गोलियत की ओर रुक रुक कर चला, किसी को उसे पीछे से धकेलना पड़ा। उसके मन में यह प्रभावशाली विचार था उन मरे हुए लाशों का और यह मरा हुआ आदमी। The Bible tells us he ran towards Goliath. That's how your life will be. Your life will move towards your most dominant thought. That's why I have the thoughts of Christ in you. बाइबल कहता है दाऊद ने गोलियत की ओर फुर्ती से दौड़ा। आपका जीवन भी ऐसा ही होगा।
वह आपके प्रभावशाली विचार की ओर ही जाएगा। इसीलिए आप में मसीहा का विचार होना चाहिए। Number 5, it's connected to what we saw. Let go of the past and look forward to your future. Many don't. 5वां, हमने अभी जो देखा उससे संबंधित है। पिछले बातों को छोड़कर आगे आने वाले भविष्य की ओर देखें। बहुत लोग ऐसे करते नहीं। They can't forgive themselves. They don't understand if God has forgiven them, it's a sin for them not to forgive themselves. How many times have I heard people say, I can't forgive myself. No, you must learn to forgive yourself. वे अपने आप को क्षमा कर नहीं सकते। वे इस बात को समझते नहीं कि अगर परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया है तो वे अपने आप को क्षमा न करने से पाप कर रहे हैं। मैंने कितनी बार लोगों को यह कहते हुए सुना है, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आपको अपने आप को माफ़ करना सीखना होगा। In Psalm 101, we read something. Come with me, please. Look at verse 3. भजन 101 में हम कुछ पढ़ते हैं। मेरे साथ आइए और देखिए वचन 3। I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. मैं किसी औचे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। Why are we looking at Psalm 101 verse 3? Because it says, I will set no evil thing before my eye. What is an evil thing? Something that doesn't measure up to God's plan. हम इस वचन को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वह बता रहा है, मैं किसी औचे काम पर चित्त न लगाऊंगा। यह औचे काम क्या है? वह काम जो परमेश्वर की योजना से मिलता नहीं। Let go of your past. In the book of Genesis, we read of Lot's wife. She could not let go of her past. Therefore, she could not enter into her future. So simple. So simple. अपने पिछले जिंदगी को छोड़ दीजिए। उत्पत्ति के पुस्तक में हम लूत की पत्नी के बारे में पढ़ते हैं। वह अपनी पिछली जिंदगी को छोड़ न सकी, इसलिए वह अपने भविष्य में प्रवेश न कर सकी। इतना सामान्य है। Many think it's just a Sunday school story. No, it's not a Sunday school story. It's a principle of life. And it's a principle or a biblical key to seeing your dream come to pass. बहुत लोग सोचते हैं यह बच्चों की कहानी होती है। नहीं, यह बच्चों की कहानी नहीं है। यह जिंदगी का सिद्धांत है और यह बाइबल से मूल सिद्धांत अपने जीवन के सपना पूरा होने के लिए। Because it reads like a story. Oh, she just turned and she became salt. You can see some people sitting and smiling. How is it possible it can happen? क्योंकि वे इसे कहानी की तरह पढ़ते हैं। वह पीछे की ओर देखी और तुरंत नमक का कम्बा बन गई। कुछ लोग बैठकर मुस्कुराते हुए सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? The problem is, when they even approach that like that, they never enter into their future. They are already turned into salt. समस्या यह है कि इस विचार के साथ आने से वे अपने भविष्य में प्रवेश करने से पहले ही नमक का कम्बा बन जाते हैं। Number 6, pursue and never give up. छठा, हमें पीछा करना पड़ेगा। We got to pursue it. You read about David. The Bible says he lost everything. What did God tell him? Pursue after them. You will get everything back. हमें पीछा करना पड़ेगा। अब दाऊद के बारे में पढ़ेंगे। बाइबल कहता है वह सब कुछ खो बैठा था, पर परमेश्वर ने उससे क्या कहा? उनका पीछा कर तो सब कुछ छुड़ा लाएगा। God's word to David was what? Pursue after them. You will recover all. All. Pursue after your dream. Every bit of your dream will come to pass. That's a biblical key. दाऊद के लिए परमेश्वर का वचन क्या था? तू उनका पीछा कर तो सब कुछ छुड़ा लाएगा। अपने सपने का पीछा कीजिए और उसकी हर बात पूरा होगा। यही बाइबल का सिद्धांत है। There are scriptures for that, please. Just write it down. In 1 Timothy chapter 1 verses 18 to 20, you read Paul giving Timothy an advice. इसके लिए वचन भी है, इसे लिख लीजिए। पहला तिमुथियुस पहला अध्याय वचन 18 से 20 तक। आप वहाँ पढ़ेंगे कि पौलुस तिमुथियुस
को सलाह दे रहे हैं। It's good counsel. What he should meditate on, what he should think about, not his youth, the word that was spoken on him. यह अच्छी सलाह है। उसे किस पर ध्यान करना होगा, उसे क्या सोचना होगा, अपने जवानी के बारे में नहीं, पर जो बात उस पर कहा गया था उसके बारे में। Let's read 1 Timothy chapter 1 and verses 18 to 20. हम पढ़ेंगे पहला तिमुथियुस पहला अध्याय वचन 18 से लेकर 20 तक। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं वह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को तामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिन्युस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। He names two people. They jumped out of the ship. They couldn't stay. They thought their decision was right. Why? Because they never considered God's word as anything to them. पौलुस ने दो लोगों का नाम बताया जो जहाज से बाहर कूदे। वे उस पर रह न सके। वे लोग सोचे कि उनका निर्णय ठीक था, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। That means life is considered to be like a ship traveling on an ocean. You don't see ships traveling on the land. Ships travel on an ocean, but you better be on your ship. इसका यह मतलब है कि जिंदगी उस जहाज की तरह है जो समुद्र पर चल रहा है। हम जहाज को धरती पर चलते हुए देखते नहीं। आपको आपके जहाज पर रहना होगा। If you live living by a clear conscience, because you don't consider God's word spoken to you as anything much, you will end up destroying and running aground the ship of faith. अगर आप शुद्ध विवेक से जीना छोड़ेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि जो वचन परमेश्वर ने आपसे कहा उसका कुछ महत्व नहीं है, तो आप अपने विश्वास के जहाज को नष्ट कर बैठेंगे। आप अच्छे विवेक में जिएंगे नहीं। Finally, the last thing, sow towards your dream. अंत में अपने सपना की ओर बीज बोइए। Your dream will never come to pass until you get involved in helping someone else's dream come to pass. Your dream will never come to pass till you get involved in helping someone else's dream come to pass. आपका सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप किसी और की सहायता करेंगे नहीं उनके सपना पूरा होने के लिए। आपका सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप किसी और की सहायता करेंगे नहीं उनके सपना पूरा होने के लिए। Why? Because it's a seed you're sowing. Sowing is not only money. Many times it's effort. It's just being there when you're needed by someone else. क्यों? क्योंकि यह एक बीज है जो आप बो रहे हैं। पैसा ही बीज नहीं होता, आपका प्रयत्न भी बीज होता है। जब किसी को आपका ज़रूरत हो तो वहाँ रहना। Sometimes you got to sow towards your dream. You want to become an educated man? Well, go and sit in class. You can't run loose and then expect to be a literate man, educated. You can't. You got to sow towards your dream. कुछ समय में आपको आपके सपना की ओर बोना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको कक्षा में बैठकर पढ़ना होगा। आप इधर उधर घूमकर पढ़े लिखे व्यक्ति बन नहीं सकते। आपको अपने सपना की ओर बीज बोना पड़ेगा। He's got to go to the place where he can be taught. In fact, that's the principle on which a farmer operates. उनको एक ऐसा स्थान जाना होगा जहां उसे सिखाते हैं। एक किसान इसी सिद्धांत पर काम करता है। If he wants a crop, he must first plant seed. अगर वह फसल चाहता है तो उसे पहले बीज बोना पड़ेगा। Remember, Genesis chapter 1 verses 11 and 12 tells us that every seed comes out according to its kind. याद कीजिए, उत्पत्ति पहला अध्याय वचन 11 और 12 कहता है कि हर बीज अपने जाति के अनुसार फल लाता है। Whether it's a human seed or whether it's an animal seed or whether it is just natural seed, it is according to the seed that you get your crop. चाहे वह मनुष्य का बीज हो या जानवर का
या प्राकृतिक बीज हो, आपको अपने बीज के अनुसार ही फसल मिलेगा। The final thing is so important. You can do all the 6. You fail in the 7th, you had it. आखिरी बात बहुत मुख्य है। आप बाकी 6 बातों का करके इस 7वां बात में असफल रहे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। If you make something happen for others, God will make something happen for you. अगर आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करेंगे। This morning, let's bow our heads in a moment of prayer. आज सुबह हम सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, as we end this time of worship and praise, पिता परमेश्वर, नाजरत के यीशु के नाम में जैसे हम इस आराधना को समाप्त कर रहे हैं, we thank you because we believe your word, we receive it into our spirits, O Lord. हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम आपके वचन में विश्वास करते हैं और उसे हमारे आत्मा में स्वीकार करते हैं। And we declare and decree that your word will stand and your word will direct our footsteps right through this entire year, O Lord, that you have blessed with your goodness. हम घोषित करते हैं और आदेश देते हैं कि आपका वचन रहेगा और आपका वचन ही हमारे कदमों को इस पूरे साल में रास्ता दिखाए। हे प्रभु, जिसे आपने अपने भलाई से आशीर्वाद किया है। Hallelujah. हालेलुया। I pray for individuals, I pray for families. मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ मौजूद व्यक्तियों के लिए और परिवारों के लिए। I pray for people, young and old, standing in your presence this day, O Lord. मैं यहाँ आपके सम्मुख में खड़े हर व्यक्ति, हर परिवार, हर युवक और हर बड़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, Let your blessing be theirs, O God. आपका आशीर्वाद उनका रहे। हे प्रभु, Crown the year with your goodness in their lives. Let their paths drop fatness, O Father. उनके जीवन में अपने भलाई से भरे हुए वर्ष का मुकुट रखिए और उनके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाए। हे पिता परमेश्वर, Because their paths are your paths. Thank you, Father. क्योंकि उनके रास्ते आपके रास्ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। Bless everyone who's here, Lord, regardless of their background. यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को आशीर्वाद कीजिए पिता परमेश्वर। They have come into this place to receive a blessing. They have heard your word. Confirm your word with signs and wonders. ये लोग आपके आशीष पाने के लिए ही आए हैं। उन्होंने आपके वचन को सुना, अब उसे चिन्ह और अद्भुत के साथ पूरा कीजिए। Lord, I commit them into your hands. Lead them every day where still waters flow. प्रभु, मैं इन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें सुखदायी जल के झरने के पास हर दिन ले चलिए। Hallelujah. हालेलुया। We vow the glory, honor and praise will always belong to you. हम मन्नत रखते हैं कि सारी महिमा, आदर और स्तुति हमेशा आपकी ही होगी। In Jesus' name we pray and everybody said, Amen हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और सब लोग बोले आमेन, and Amen. आमेन। Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us now and until Jesus comes, keeping us in the center of His will right through this entire year. Amen. पिता परमेश्वर की आशीर्वाद, पुत्र परमेश्वर की आशीर्वाद और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के आशीर्वाद हम सब पर अब और यीशु के आने तक सदा के लिए रहे और हमें उनके इच्छा में रखे इस पूरे साल में। आमेन। रेवरेंड आइजक का संदेश यहीं पे खत्म होता है। रेवरेंड आइजक के दूसरे संदेशों के बारे में जानने के लिए और हमारे मासिक अंग्रेजी सूचना पत्र पाने के लिए जो परमेश्वर का वचन से भरा है, हर महीने के लिए हमें इस पते पर लिखें। एल शडाई क्रिश्चियन फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 2510, चेन्नई 600029, तमिलनाडु, इंडिया।